Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. Now, you woke up and you came here. You're going to study after this. You'll have breakfast, you'll have lunch, then you're going to study. And those students who are going to, college or how they are maintaining life, you're going to continue doing that, right? Now, imagine that you are living in a state where this normal life of yours it almost stopped for months. How will you feel? You cannot go to college. You cannot do normal daily your chores. So how will you feel about that? This was something that was happening in Manipur. So Manipur is a small state in northeast. Now people from different ethnic communities were living there, right? And different culture was presenting, right? और उसके साथ साथ में यहाँ पर दो मेन ग्रुप्स की हम लोग बात करेंगे. We are going to talk about Meiti and we are going to talk about the Kuki also. ठीक है. अब जब हम दोनों की बात करेंगे तो उससे पहले we have to understand that whenever diversity is there, the concept of diversity, concept of existing so many ideologies are there, conflict are going to happen, right? So this is the human nature. As one of the thinker also said, Thomas Hobbes, what did he say? He says this is human nature. Thomas Hobbes explained that this is human nature to fight. Why? Because that community will have different ideology, right? And when they'll have different ideology, right, we are here for recognition. Human being want recognition. Without recognition we cannot live. And when this concept of recognition is put in our mind, fights, conflicts and wars always happen. If you look at the history, if you look at the present scenarios, you'll find it everywhere, right? So we want presence, we want our recognition, and because of this, right, and not our recognition, we want our recognition of our ideologies also. We want our ideologies to be superior, और उसके साथ साथ में we want maintenance in the society also. ठीक है, खुद को superior भी दिखाना है और खुद को एक maintain करके भी रखना है in the society. And for this conflict, to maintain this conflict, ऐसे सारे के सारे chaos होते रहते हैं in the society. आप चाहे छोटे region की लड़ाई लेकर चलो या फिर history के किसी बड़े war की लड़ाई लेकर चलो, you'll find this pattern each and everywhere, right? So this was something that was happening in Manipur also. ठीक है, क्या हो रहा था वहां पर? So as we have seen also, आप लोगों ने भी news देखी होगी that people were like killed in a large number. ठीक है, like thousands of people were injured, right? Thousands of families were like forced to move out from their homes, leave their homes, right? यहाँ पर सिर्फ इतनी बात नहीं थी, घर को लोगों को जलाया गया था, right? Fear and tension was like everywhere. बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें लॉ एंड मेंटेनेंस की, वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका था एक टाइम पर इन मेनी एरिया ऑफ मणिपुर. आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ एक छोटे पर्टिकुलर एरिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटीज, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियाज. तो यहाँ पर हमें देखने को मिला दैट इवन स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रगल टू कंट्रोल द सिचुएशन. पुलिस और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई उस सिचुएशन को. सो देयर वाज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट आल्सो एंड देयर वाज अ chaos that was coming from the society also. और दोनों को मेंटेन करना इट वाज लाइक बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए दैट ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज इट ब्रोक डाउन. पॉलिटिकल प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो गया चीफ मिनिस्टर, राइट? अब हम बात करेंगे कि फरवरी 2025 में क्या हुआ. तो उस टाइम पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज नोन एज एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन दे दिया, राइट? और उनका रिजिग्नेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था. क्यों था? क्योंकि इट हैपेंड लाइक बिफोर इम्पोर्टेंट असेंबली सेशन, राइट? और बिना चीफ मिनिस्टर के स्टेट के पास कोई इलेक्टेड लीडरशिप नहीं होता है, और अगर कोई लीडर नहीं होगा तो हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, राइट? अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन चुका है. व्हाई दिस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल इशू? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट एवरी स्टेट have a government that can function properly. लेकिन मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा था, जो continuation of violence was happening, so chief minister had to resign, right? Assembly could not function normally. कोई stable government नहीं थी हमारे पास में. तो इस सिचुएशन ने हमारे पास ट्रिगर करी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. इसका मतलब ये है कि सेंटर को आगे आना पड़ा और उन्होंने ये क्वेश्चन करा कि कैन दिस स्टेट स्टिल बी गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नहीं. इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमारे पास लगा प्रेसिडेंट रूल, राइट? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ दीज टू कम्युनिटीज, राइट? थोड़ा सा मैप के साथ में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाई दिस डिस्ट्रप्शन वाज सीन, एंड आफ्टर दिस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस प्रेसिडेंट रूल इज एंड व्हाई इट वाज इम्पोज्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रीलिम्स आल्सो. ठीक है, तो पहले हम लोग किसके पास चलेंगे? पहले हम लोग चलेंगे बैकग्राउंड के पास में. अब देखो,
मैंने हमेशा से तुम्हें बोला है कि जब भी कोई हिस्ट्री पढ़ते हो, जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हो, प्रेजेंट न्यूज पढ़ते हो, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्ट्री आल्सो, क्योंकि हमेशा जो कनेक्शन होता है इट इज लाइक विद द हिस्ट्री ओनली, राइट। उसके जो मेन फैक्टर्स होते हैं दे आर कमिंग टू यू इन द प्रेजेंस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने कुछ डिसीजंस वैसे लिए होते हैं एंड दे आर द consequences दैट वी आर फेसिंग, राइट। सो मणिपुर के साथ में भी सेम सिचुएशन हुई थी, सो देयर वर सम consequences, देयर वर सम conflict that happened, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए थे that are the result of the conflict that we are facing in today's scenarios। अब हम लोग चलेंगे 1724 में, तो हम लोग जब बात करते हैं कि मणिपुर कहाँ से नाम आया, राइट, और बेसिकली इसका नाम महाभारत से लिया गया था, और ये क्या दिखाता है मणिपुर के बारे में, राइट। सो व्हेन मणिपुर डिफाइंड इटसेल्फ एज अ किंगडम, सो व्हाट हैपेंड, 1724 से पहले मणिपुर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ठीक है, एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल किंगडम कहलाता था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट। उसके खुद के किंग्स थे, खुद की आर्मी थी, खुद का लैंग्वेज था, राइट, खुद का कल्चर और ट्रेडिशन था। लेकिन 1724 के बाद में कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले हमें यहाँ पे, राइट। जो हमारा रूल था वो फॉर्मली जो था इट वाज लाइक अडॉप्टेड विद द नेम ऑफ मणिपुर, राइट। तो मणिपुर कोई रैंडम नाम नहीं है, ये हमारा नाम महाभारत से लिया गया है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मणिपुर, राइट, एंड इट इज मेंशन्ड इन द मणिपुरा इज मेंशन्ड इन द महाभारत। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अर्जुन ने बेसिकली शादी करी थी चित्रांगदा से, राइट, एंड शी वाज अ प्रिंसेस ऑफ मणिपुर, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट इंडिया से हमें ये पता चलता है, मेडिवल इंडिया से हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि यू नो दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्रेस्टीज, अबाउट द लेजिटिमेसी, है ना। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हमारा मणिपुर था वो सिर्फ एक ट्राइबल नहीं था, उसकी खुद की भी एक हिस्ट्री है एंड इट इज पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन आल्सो, ठीक है। बैकग्राउंड इतना समझ में आया। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि वो रूलर क्या चाहते थे। तो मणिपुर को ये दिखाने के लिए कि वो ओल्ड है, रिस्पेक्टेड किंगडम है, राइट, उन्होंने खुद को कल्चरली और ज्यादा इनहेंस करा, स्पिरिचुअली कंटेन करने की कोशिश करी, राइट। तो खुद के अथॉरिटी को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ करने के लिए दे बेसिकली हैड द दिस कल्चरल रेवोल्यूशन आल्सो, राइट। तो मणिपुर कहीं ना कहीं बोल रहा था कि हम लोग कोई नए नहीं है, हम लोग कोई आइसोलेटेड नहीं है, हमारी भी एक एंशिएंट हिस्ट्री है एंड दिस टेल्स अस अबाउट द मणिपुर कल्चर आल्सो, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ, 1821 ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यू नो फैक्टर है, राइट, फ्रॉम हियर द स्टोरी बिगिंस। 1821 की जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट हैपेंड, तो हमारे पास में दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश कंट्रोल, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था इन द अर्ली 1800s, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी पावर एक्सपेंड करनी शुरू करी, राइट। इंडिया में वो पहले से शुरू करते हुए जा रहे थे, अब वो पहुंचे मणिपुर की तरफ, राइट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ जाता है ज्योग्राफिकली की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है दैट इज कनेक्टेड टू द म्यांमार, जो आज के टाइम पे सॉरी उस टाइम पे बुर्मा था, नाउ इट इज नोन एज म्यांमार। तो इस एरिया की वजह से इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि इट इज लाइक द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली दीज पीपल बट फॉर ब्रिटिशर्स आल्सो, ठीक है। इट वाज लाइक अ स्ट्रेटेजिक गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया, राइट। तो ज्योग्राफिकली जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या हुआ था कि इट वाज लाइक मिलिटरी वीक, राइट, कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। हमारी जो ये एरिया था, राइट, इन लोगों के पास में मिलिट्री नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, राइट। तो समवेयर दे हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन हूम, अब एक ही ऑप्शन बचता था, दैट वर ब्रिटिशर्स, राइट। तो अब ब्रिटिशर्स के साथ में उन्होंने क्या अलाइनमेंट्स किया, ऑन व्हाट बेसिस द अलाइनमेंट्स वर डन, तो वो बहुत जरूरी है समझना। अब देखो, गुड मॉर्निंग। तो अब देखो हुआ क्या 1821 में, कि जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो हमारे पास मणिपुर था, राइट, दैट एंटर टू अ सब्सिडरी अलायंसेस, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंसेस क्या है, इसका मतलब ये है कि मणिपुर बोल रहा है कि यू नो हमें प्रोटेक्ट करो फ्रॉम द एनिमीज। ब्रिटिश ने बोला कि चलो ठीक है प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कंडीशंस क्या थी कि ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे मणिपुर में, ठीक है। ब्रिटिश सारा का सारा फॉरेन पॉलिसी हैंडल करेगा, डिफेंस हैंडल करेगा, और मणिपुर के किंग जो होंगे दे कैन स्टिल बी इंटर्न, बेसिकली इंटरनल मैटर्स में रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा डिफेंस का मैटर होगा दैट विल गो, दोस डिसीजन विल गो टू ब्रिटिशर्स ओनली, राइट। अब इस चीज पर मणिपुर अग्री कर गया। क्यों अग्री कर गया, क्योंकि देयर वाज फियर ऑफ इन्वोजन आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया एज आई एक्सप्लेन्ड, राइट। रिसोर्सेज नहीं थे, मिलिट्री पावर इतनी नहीं थी, सो दे हैड टू यू नो अलाइन विद देम, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि तुम इंटरनली बेसिकली रूल कर सकते हो, बट द रियल फैक्टर, द रियल सिनेरियो वाज कि ब्रिटिशर्स ही सारे के सारे यू नो बेसिकली जो पावर थी सारी की सारी उनकी तरफ जा रही थी, राइट। ब्रिटिश बेसिकली लुक्ड टू पावरफुल टू रेजिस्ट, राइट। तो यहाँ पर किंग वाज स्टिल देयर, राइट, बेसिकली किंग सेट विद इट्स थ्रोन, राइट, बट
जो हमारी तलवार थी, द स्वॉर्ड वाज बेसिकली विद ब्रिटिशर्स ओनली एज द डिफेंस डिसीजंस, राइट? इंटरनल डिसीजंस इतने मैटर नहीं करते, बट व्हेनेवर डिफेंस डिसीजंस आर टेकन समवेयर एल्स, तो आधी से ज्यादा पावर वहीं शिफ्ट हो जाती है, राइट? अब ये जरूरी भी था उस टाइम पर, अगर हम देखा जाए लॉजिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, राइट? तो पहला कहीं ना कहीं इसको लाइक पीपल कंसीडर इट एज अ लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिना किसी लड़ाई के वहां पर इन्वेड कर दिया, उन्होंने बेसिकली दे टू कंट्रोल विदाउट एनी डायरेक्ट वॉर ऑफ मणिपुर, राइट? तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम लोग देख भी रहे हैं, राइट? इसके साथ साथ में अब हमारे पास में आता है तीसरी चीज, हमारे पास में आता है 1891 का एंग्लो इंडियन वॉर। अब देखो क्या हुआ, एंग्लो ब्रिटिश वॉर। तो हुआ क्या कि जब हमारा एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ, ठीक है, तो मणिपुर वाज डिफीटेड एंड बिकेम अ प्राइसलेस स्टेट अंडर ब्रिटिशर्स। अब ये हुआ कि टेंशन वाज देयर, ठीक है, मणिपुर के जो रॉयल कोर्ट्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं केओस चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, देयर वाज अ डिवीजन व्हिच वाज सीन, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ब्रिटिशर को चाहिए था और ज्यादा कंट्रोल, ठीक है, मणिपुर को चाहिए थी प्रोटेक्शन, उसकी सॉवरेनिटी की भी बात आने लगी कि कुछ जब तुमने बोला था मैं स्टार्टिंग में कि इंटरनल फैक्टर्स पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, देन व्हाई इज इट नॉट इन द केस, हम लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? बात तो यही हुई थी ना, दैट यू विल बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एनिमीज, डिफेंस में तुम हमारे सामने रहोगे बट इंटरनल फैक्टर्स में तो विल टेक द डिसीजंस, देन वेयर इज द सॉवरेनिटी ओवर हियर, लाइक द क्वेश्चन स्टार्टेड कमिंग अप, ठीक है। तो इसकी वजह से एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ हमारे पास में 1981 में, ठीक है। तो अब एज आई सेड बिफोर आल्सो कि स्टार्टिंग की कहानी इस बेसिस पे हो रही थी कि मणिपुर के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, डिफेंस में वो अच्छे नहीं थे, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हार मणिपुर की होनी ही थी, राइट? तो मणिपुर वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश और बहुत सारे लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जीक्यूट कर लिए गए थे। वॉर के बाद में क्या हुआ, मणिपुर वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइसली स्टेट, ठीक है। तो किंग तो वहां पर था, लेकिन जो हमारा ब्रिटिश राइट पॉलिटिकल एजेंट था, राइट, वो सारे के सारे जितनी भी चीजें थी वो कंट्रोल किससे की जा रही थी, वो करी जा रही थी हमारे ब्रिटिशर से, राइट? सो बेसिकली मणिपुर की जो रियल इंडिपेंडेंस थी वो इस वॉर के बाद में वो और ज्यादा छिन गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइसली स्टेट्स है इसका मतलब क्या है, मतलब अब उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा डिफेंस पे, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा फॉरेन रिलेशंस पे। अब ब्रिटिश जब चाहे जब उनका मन करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं एंड दे कैन इंटरवीन, नॉट आ सकते हैं, दे वर कंट्रोलिंग इट, ठीक है। तो मतलब मणिपुर बिकेम अ किंगडम सिर्फ नाम का, ठीक है। ब्रिटिशर जो थे रियल रूलर्स थे और इसी की वजह से जो हमारी मणिपुर की जो सोवरेनिटी थी जिसके बेसिस पर ये लड़ाई हुई थी वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ 1891, आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब यहां से हमारे पास दूसरी कहानी आती है 1947 की। अब इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, राइट, इंटीग्रेशन विद इंडिया एज महाराजा बोधचंद्र बेसिकली साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड मणिपुर ऑफिशियली जॉइन द इंडियन यूनियन। अब हुआ ये कि 1947 में ब्रिटिश का जो रूल था वो खत्म हो चुका था, राइट। अब हमारी जो प्राइसली स्टेट थी उसके पास तीन ऑप्शन थे, या तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर तुम इंडिपेंडेंट बन के रह लो, राइट। अब एज हम पहले से बात कर रहे हैं, सारी कहानी रिसोर्सेज की, सारी कहानी बेसिकली सेफ्टी की थी, राइट। उसी के चलते हुए तो ब्रिटिशर्स को साथ में एग्रीमेंट किया था। अब वही चलते हुए बेसिकली मणिपुर ने भी वही किया, जो मणिपुर रूलर थे महाराजा बोधचंद्र, उन्होंने बेसिकली हमारे साथ में इंडिया के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ सेशन को साइन, ठीक है, और उन्होंने क्या था इंडियन यूनियन को बेसिकली ज्वाइन कर दिया, राइट। अब सारी की सारी पावर कहाँ चली गई, हमारी सारी की सारी पावर चली गई इंडिया के पास में, उनका डिफेंस, उनका फॉरेन अफेयर्स, उनका कम्युनिकेशन, राइट, एवरीथिंग हैपेंड फ्रॉम देयर, ठीक है। जो हमारा जो सेशन था वो बेसिकली नहीं हुआ। सो स्मॉल स्टेट्स दैट कुड नॉट सर्वाइव अलोन, सिक्योरिटी कंसर्न की बात चल रही थी, स्टार्टिंग से बात चल रही थी, है ना। तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल नेसेसिटी की वजह से दिस डिसीजन वाज सीन, मतलब मणिपुर ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया दैट विल बी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, जैसे कि और सारी प्राइसली स्टेट्स ने डिसाइड किया था इन द सेम वे, राइट। बट एक बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरी की पूरी लड़ाई जो आज की न्यूज को कनेक्ट करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये जो हमारी जो कम्युनिटीज है, व्हाई दे आर फाइटिंग और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो गया, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो एक ना छोटा सा पोर्शन जो है वो मिस हो रहा है। तो जब हमारे पास में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, दे केम टू मणिपुर, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम प्रोटेक्शन देंगे, बदले में तुम ये चीजें मेंटेन करोगे और जो कंट्रोल रहेगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स दे वर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल या उनका कल्चर समझने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। दे वर ओनली थिंकिंग अबाउट कंट्रोल और सिर्फ सेफ्टी की वजह से, और बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल एरिया, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट दिस बॉर्डर लाइन फ्रॉम बेसिकली बुर्मा, सो फॉर दिस रीजन दे वांटेड टू कंट्रोल बेसिकली मणिपुर, ठीक है।
तो हमारे अगर हम बात करें उस स्टार्टिंग एरिया में द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी टेकन ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस लोकेशन की वजह से। तो जो हमारी इम्फल वैली थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी एज बिकॉज इट वॉज लाइक फ्लैट, ठीक है। ये वाली जो एरिया है, दिस एरिया, राइट, जहां पे हमारे मैटीज रहते हैं, दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो ये फ्लैट है, ठीक है, दूसरा ये फर्टाइल है और ये बहुत इजी था कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर प्रॉब्लम थी उनको इस वाले एरिया में, इन दिस एरिया दे हैड प्रॉब्लम। मतलब अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपने तो रिसोर्सेज, अपने सोल्जर्स बिठा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, राइट। बट व्हेन इट केम टू पुटिंग देयर रिसोर्सेज इन देयर सोल्जर्स ओवर है, उन्होंने सोचा कि हम अपने सोल्जर्स यहाँ पर क्यों डालें, राइट। और उसके साथ में एक और चीज, नागाज की ना ऑलरेडी लड़ाई चल रही होती थी, ठीक है। ये मैतीज हमेशा शांति में रहते थे, बट व्हेन इट केम टू दीज पीपल, नागाज और बेसिकली इनकी बात करें तो नागाज और कुकीज के बीच में आपस में लड़ाई रहती थी, राइट। छोटी छोटी कम्युनिटीज आपस में लड़ाई करती रहती थी, मैतीज के साथ में कुछ ऐसा रोल नहीं था। तो बेसिकली उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने अपने सोल्जर्स यहाँ पे ना स्टार्टेड पुटिंग देयर सोल्जर्स ओवर हियर, राइट। तो अब जब बात करते हैं इन इस एरिया की, तो उन्होंने बोला कि हम क्यों अपने सोल्जर्स रखे, राइट। तो उन्होंने एक कम्युनिटी को उठाया, कुकी को, दे कंसीडर्ड कुकी टू बी एलिजिबल एंड दे सेड कि तुम यहाँ पर बेसिकली सेफ्टी का काम करो, राइट। तो दे समटाइम्स एज आई सेड आल्सो कि नागा के जो ग्रुप थे बेसिकली दे यूज्ड टू अटैक द वैली, राइट। तो ब्रिटिशर्स को ये बेसिकली जो प्रॉब्लम थी, राइट, वो कहीं ना कहीं सुलझानी थी, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर मनी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर आर्मी, ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि चलो एक काम करते हैं, लोकल पीपल को काम पर लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि चलो कुकी हमारे पास है, कुकी ट्राइब है और काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स कंसीडर किए जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, कुकी को बेसिकली इन द हिल ऑफ बुरमा बेसिकली उन्होंने वहां पे उन्हें भेज दिया, राइट। उन्होंने वहां पर उन्हें सेटल करा, उन्होंने रिसोर्सेज दिए, उन्होंने पैसा दिया, उन्हें लैंड दी, राइट। और इसके साथ साथ में उन्हें प्रोटेक्शन दी गई, जो हमारी मेटीज थे तो बेसिकली उन्हें प्रोटेक्शन दी गई, उन्होंने अलाउ करा टू लिव एंड बेसिकली लैंड के साथ साथ में और ज्यादा रिसोर्सेज भी दिए। तो कहीं ना कहीं इट वाज गिवन लाइक अ एज अ लाइक वी कैन से कि थोड़ा सा काम कराने के लिए कुछ बदले में दे दिया गया, राइट। सो द आइडिया वाज दैट द कुकीज वुड एक्ट लाइक अ वॉल बिटवीन द हिल अटैकर्स एंड द वैलीज आल्सो। सो इफ एनी ट्रबल इज कमिंग तो कुकी वुड फेस इट फर्स्ट, राइट। और जो हमारा वैले रहेगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा एंड ब्रिटिशर्स वुड लाइक लिव पीसफुली, है ना। तो ये जो है उस टाइम पर कहीं ना कहीं काम भी कर गया, राइट। कुकी जो थे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम भी कर गए। जो वो लड़ाई चल रही थी, राइट, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी था, जो बॉर्डर फैक्टर भी था, कहीं ना कहीं उस टाइम पर वो सॉल्व भी हो गया, राइट। बट एज टाइम पास, कुकी ने बोला कि हमारे लिए तो तुम पहले एक एक अलग से नाम दो, कुकी लैंड बनाओ, ठीक है। नागास की लड़ाई ये चल रही है, नागा बोलते हैं कि हमें तो अलग हमारी कंट्री चाहिए, ठीक है। तो इस लड़ाई के चलते चलते सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन देम, और ये चीज हमारी वहीं से ब्रिटिशर से आ रही है। तो अगर कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा रिजोल्व हो जाता परमानेंटली उस टाइम पर, तो आज के टाइम पे हमें सिचुएशन फेस करने को नहीं मिलती। बट देन अगेन एज वी नो कि ब्रिटिशर्स ओनली वांटेड कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, तो वही चीज यहाँ पर हो रही थी, राइट। 1972 की बात करें तो मणिपुर जो था हमारा पूरा का पूरा स्टेट में बदल चुका था, राइट। लेकिन जो उससे पहले की सिचुएशन थी, उससे पहले ये था यूनियन टेरिटरी में था, लिमिटेड पॉलिटिकल पावर थी, और जो हमारा सेंटर का था पूरा का पूरा इट वाज लाइक अ हेवी कंट्रोल ओवर देयर, राइट। लेकिन 1972 के बाद में चेंजेस दिखाई दिए। हमारी जो मणिपुर थी इट बिकेम फुली फ्लेज्ड स्टेट, राइट। इट बिकेम द 19th स्टेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब उसके साथ साथ में जो हमारा जो स्टेटहुड था, राइट, दैट गेव मणिपुर प्रॉपर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव पावर आल्सो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर दे दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया लोकसभा और राज्यसभा में, और जो लोकल गवर्नेंस का कंट्रोल था वो दिया गया, राइट। तो मणिपुर फाइनली गॉट इक्वल स्टेटस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन 2023 में जो हमारे पिछले चलते हुए जिन कम्युनिटीज में लड़ाई थी वो और लड़ाई बढ़ती चली गई, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, मई में जैसे हमने न्यूज में भी देखा था, एज वी नो कि कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था, राइट। मणिपुर फेस्ड सीरियस एंड एथनिक वायलेंस ओवर देयर, ठीक है। स्पेशली जो मेथी और हमारे कुकी के जो ग्रुप्स है इनके बीच में बहुत ज्यादा हुआ, लोग बेसिकली मारे गए, राइट, घर जला दिए गए, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बीइंग डिस्प्लेस्ड, राइट। तो ये जो शटडाउन था, ये जो दिस लॉस ऑफ नॉर्मल लाइफ, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग लाइक फ्रॉम द अर्ली स्टेज, राइट। तो अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस था मणिपुर में वो और ज्यादा बढ़ने लग गया था और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था, ठीक है। अब देखो जो ये मणिपुर है, राइट, इट हैज बीन लाइक फेसिंग सीरियस वायलेंस कब से, मई 2023 से, क्योंकि जो क्लैश हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, उसकी वजह से जो हमारे लोग थे और जो हमारे घर थे और जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, राइट। जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग वायलेंस था, जो हमारा पीस था, लॉ एंड ऑर्डर था, वो एकदम खत्म हो चुका था।
राइट। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उस टाइम पे हमारे बीरेन्द्र सिंह थे चीफ मिनिस्टर, राइट, और उनके चलते हुए ये सारी की सारी सिचुएशन हो रही थी, राइट। सो इसीलिए क्या हो रहा था, सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती गई, राइट। तो बेसिकली उनकी पार्टी के लोगों ने भी और अपोजिशन ने भी उनको क्रिटिसाइज करा उस एक्ट को, क्योंकि ही फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, राइट। तो अब इसकी वजह से अनस्टेबल के चलते हुए क्या हुआ, फरवरी 2025 में बीरेन्द्र सिंह जी ने क्या करा, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। तो रेजिग्नेशन के बाद में क्या हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास में लेकर आ सके, राइट। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली दैट कुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, राइट। और यहाँ पर हमें बहुत जरूरी होता है, दिस डिसीजन कुड बी अफेक्ट द कंट्री आल्सो एंड इट कैन अफेक्ट द स्टेट आल्सो, राइट। क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं कि वायलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो वायलेंस अभी से ही नहीं शांत बैठा तो इट कैन अफेक्ट नेशन आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाई इट वाज सीन कि अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रहेगी प्रेजेंट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो दिस वाज सीन एज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका मतलब ये होता है दैट कि स्टेट इज लाइक फेलिंग टू गवर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ताकि स्टेट को थोड़ा मेंटेन करके रखे, स्टेट को थोड़ा नॉर्मलाइज करके रखे, तब तक सिचुएशन थोड़ी शांत नहीं हो जाती, जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है दोबारा से रिस्टोर नहीं हो जाती, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेंशन करा है, फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है जब हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट जो है दैट इज लाइक कैन नॉट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। गवर्नमेंट के लॉस की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ बेसिकली रिजाइंस। नॉर्मल गवर्नेंस जो होती है वो हमारी इम्पॉसिबल हो जाती है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है टू स्टेप इन ड्यूरिंग सच क्राइसिस, ड्यूरिंग इन दी सिचुएशन, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल की थोड़ी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रेसिडेंट रूल है क्या। तो क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो चुकी थी एंड जो हमारा प्रेसिडेंट रूल था वो इम्पोज हुआ था 13/2025 में, और ये हमारा बेसिकली किया गया था अंडर आर्टिकल 356। तो इन 3 आर्टिकल की हम बात करेंगे पहले तो, ठीक है। इन 3 आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन थी, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया गया है, राइट। सो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस पावर एंड गवर्नर एंड द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एज बीरेन्द्र सिंह रिजाइंड, राइट। तो उसके चलते हुए ऑलरेडी द केओस वाज देयर, उसको मेंटेन करना भी जरूरी था। अगर वहां पे कोई गवर्नमेंट रहेगी नहीं तो स्टेट तो बिखर जाएगी। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट बेसिकली रेन स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, राइट। तो बेसिकली है यहाँ पे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनकी पावर चली जाती है, गवर्नर बेसिकली हमारा जो है स्टेट रन करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। स्टेट असेंबली जो है सस्पेंड हो जाती है। रिमेंबर जो हमारी स्टेट असेंबली है वो सिर्फ सस्पेंड होती है, राइट, डिसॉल्व नहीं होती है, राइट, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास ये 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दैट इज आर्टिकल 355 जो इंश्योर करता है कि स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन चले, तो इसके चलते हुए डिसीजन लिया गया। उसके बाद में आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड। आर्टिकल 365 की बात करें, इफ स्टेट इग्नोर्स द सेंटर्स डायरेक्शन प्रेसिडेंट्स रूल्स इज इम्पोज्ड, राइट। सो दिस ऑन द बेसिस ऑफ 3 आर्टिकल्स, अगर हमारे पास में स्टेट इग्नोर करता है सेंटर के डायरेक्शन तो जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो जाएगा, और इन्हीं तीनों आर्टिकल के चलते हुए दिस डिसीजन वाज बेसिकली टेकन, राइट। अब इसके बाद में पार्लियामेंट्री की अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट्री की अप्रूवल की बात करते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जो प्रेसिडेंट रूल था, राइट, ये दोनों हाउसेस से अप्रूवल होने के बाद ही इम्प्लीमेंट होता है हमारा बेसिकली पार्लियामेंट के साथ में, ठीक है। और उसके साथ साथ में एक और, ये बेसिकली अप्रूव होना चाहिए विद इन 2 मंथ्स, राइट। और इसकी जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन है सिर्फ 6 महीने की, राइट। हाँ, बट ये जो है कि एक्सपेंड हो सकता है 3 साल तक, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। इज दिस अंडरस्टूड? इसके साथ साथ में अब समझेंगे कि चेंजेस क्या है 2026 में, ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, बाय अर्ली 2026 पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई, राइट। अब अभी क्या हो रही है, देयर इज अ एंट्री ऑफ युमनाम खेमचंद सिंह, राइट। वो हमारे सीनियर बीजेपी लीडर हैं, वो मणिपुर से हैं, राइट, एंड ही आल्सो हैव पॉलिटिकल बैकग्राउंड आल्सो, और कहीं ना कहीं बात हो रही है दैट फाइनली मणिपुर में थोड़ा स्टेबलाइजेशन आएगा, राइट। उनकी एज है 62 इयर्स और बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। ही इज बेसिकली चूजन लीडर ऑफ बीजेपी, राइट। और यहाँ पे ही कलेक्टेड लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एनडीए एमएलएस, ठीक है। और बेसिकली लोग गवर्नर से मिले हैं एंड बेसिकली इट इज कंफर्म दैट ही विल बी द सीएम ऑफ देयर, ठीक है। तो स्टेकिंग अ क्लेम का मतलब ये होता है कि
governor is basically telling that I have majority support and I can form a stable government over there. ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक हो चुका है. इसके बाद में क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है राइट वो इश्यू करेंगे नोटिफिकेशन. प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक होगा, रिवोक हो चुका है राइट. और उसके साथ साथ में इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल कंट्रोल होगा राइट, स्टेट डेमोक्रेसी जो हमारी होगी वो फाइनली रिस्टोर हो जाएगी और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी. सो इट्स लाइक सीन एंड इट्स लाइक होप कि फाइनली शायद ऐसा हो सकता है कि मणिपुर में यू नो द केओस दैट वाज हैपनिंग बिफोर शायद उसको स्टेबलाइजेशन की बात होगी. एंड आई होप जो तो कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस है दैट कुड बी सेटल्ड बिकॉज ऑफ दिस lots and lots of violence has happened, lots of people have lost their life. and especially जब हम बात करते हैं ना इंडिया जैसे डाइवर्सिटी की, जहाँ पे हमारे पास ईस्ट में भी इतने लोग हैं, साउथ में भी, एंड लाइक चारों डायरेक्शन से हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है. अगर एक डायरेक्शन से इफ दिस डिस्टर्बेंस एंड इफ दिस डाइवर्सिटी इफ दीज डिफरेंसेस आर सीन तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ उस पोर्शन तक नहीं रह जाता है, इट लाइक स्प्रेड्स. अगर मणिपुर से शुरू हुआ है तो द यू नो वायलेंस कैन स्प्रेड फर्दर आल्सो. So stop that. It is the right time. I feel that government should participate. Government should take legal actions, and they should like resolve the conflict that is happening between these communities. Okay. I hope this news is clear. Okay. Now, इसके साथ में एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे क्या, जल्दी से करेंगे दूसरी न्यूज. ठीक है, so this is the question. You'll get few seconds to write the answer and then we'll move to the next news. चलो, अभी बताया मैंने with reference to the president rule in state, consider the following statement. President rule can be imposed when there is a failure of constitutional machinery in the state. बिल्कुल सही है ये, है ना. अभी देखा हमने जैसे कि फिर उसके बाद the proclamation of president rule must be approved by parliament within 2 months. ये भी बिल्कुल सही है. क्या ये सही है? Okay. Then after this, once imposed, president rule can continue indefinitely without any constitutional limit. Is it so? नहीं. Yes, very good, बच्चे. Very good. Yes. The correct answer is E. Very good. Now let's move to the another news. A, very good. चल, अब अगली न्यूज पे चलते हैं जल्दी जल्दी. तो Jaishankar-Rubio welcome trade deal, discuss critical minerals for cooperation. Okay, very important. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब दो हमारे पास लीडर्स, ठीक है, when they meet and especially after signing something and after some controversies, after some conflict, how exactly it is what they talk about. ठीक है, और क्यों important हो जाती है ये मीटिंग्स. As I said also कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर मिलते हैं, even a small gesture means something, right? So make sure that you are understanding कि फ्यूचर में इस जेस्चर का मतलब भी क्या हो सकता है, राइट? तो अब यहाँ पर दो कंट्रीज की बात होगी, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की. ठीक है, कंफ्लिक्ट हमें पता है कि क्या चल रहा था, राइट? तो नाउ दे आर वर्किंग क्लोजली इन ग्लोबल अफेयर्स आल्सो. वो दोनों ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, रीजनल स्टेबिलिटी में, राइट, और वर्ल्ड पीस में भी, राइट. दोनों के बीच में ये कॉमननेस है, इसीलिए दोनों बेसिकली बहुत टाइम से साथ में मिलकर चल भी रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ द पीस, राइट. दोनों के ये सेम गोल है, इसीलिए साथ में है. तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन दीस टू कंट्रीज, राइट, तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर टू कंट्रीज. ये कहीं ना कहीं में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताता है बिकॉज द डिस्कशन दैट हैज बीन टेकन प्लेस व्हाइल दिस मीटिंग वाज हैपनिंग, व्हाइल दिस मीटिंग वाज हैपनिंग. तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के बारे में बताएगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, राइट, डॉक्टर जयशंकर, he traveled to Washington DC, capital of United States, to meet with US leaders. ठीक है, तो किस किस से मुलाकात करी और बेसिकली व्हाट दे टॉक्ड अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे थे और उसके बाद में जो हमारे पास में ये ट्रेड टैरिफ डील आई थी उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हुए. एंड नाउ व्हाट दिस मीटिंग इज टेलिंग टू अस, फ्यूचर हमारे पास गोल कैसे होंगे एंड व्हाट इज द कॉमननेस ओवर हियर, प्रीलिम्स से इसका क्या रिलेशन है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं. तो जैसे कि हमें पता है, साउंड इज क्लियर बच्चा, है कि यू माइट बी फेसिंग द ग्लिच. आर यू फेसिंग द सेम सिचुएशन? ओके, साउंड इको हो रही है. Okay, give me a second, please.
I hope the voice is audible. Can you confirm, portal students, please? Please confirm if the voice is audible. Okay, बच्चे. Thank you. Thank you so much. अच्छा, चलो, थैंक यू. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से पता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशनशिप इतने भी अच्छे नहीं थे. स्टार्टिंग की बात कर ले, अर्लियर फेज में क्या था, हमारा गोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, राइट? तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर व्हाट वाज हैपनिंग, दे वर फॉलोइंग द नॉन अलाइनमेंट, ठीक है. और हमें पता है कि यूएसए एक टाइम पर वाज क्लोज टू हूम, पाकिस्तान के क्लोज में थे, राइट? तो इसकी वजह से जो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप थे वो हमेशा से इट वर लाइक लिमिटेड और हमेशा से कॉशियस रहे हैं, राइट? ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है 1991 के बाद में, राइट? जब हमारा इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, राइट, देन दिस चेंज वाज सीन, ठीक है. हमारे जो रिलेशनशिप थे वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुए थे उस टाइम पर, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, और उसके बाद में पीपल टू पीपल, राइट, कल्चरल एक्सचेंज में जो हमारा जो दिखा था, राइट, दिस बेसिकली कॉन्टैक्ट वाज इंक्रीज इन 1991, राइट. और उसके बाद में चलो चेंज तो हुआ था, जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया था वो हमारा आया था 2000 के आसपास में, जो हमारा सिविल न्यूक्लियर डील थी, राइट, जो सिविल न्यूक्लियर पावर थी उसकी वजह से 2005 में क्या हुआ था, बेसिकली इट मेड द यूएस एक्सेप्ट इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. मतलब अगर हम रियलिटी को देखें, जनरल वे में कहीं समझने की कोशिश करें कि जब तक तुम पावरफुल नहीं हो, नो वन विल कंसीडर यू इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऑल द यूपीएससी स्टूडेंट, ऑल द पीसीएस स्टूडेंट, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन योरसेल्फ सो दैट यू कैन स्टैंड इन द सोसाइटी समवेयर. सो यही चीज हुई थी कि जो हमारा, जब तक हम लोग वी वर नॉट पावरफुल, ठीक है, न्यूक्लियर वाइज, तब तक हमें देखा ही नहीं जाता था, राइट? जब हमारे पास में डिफेंस कॉर्पोरेशन आया, राइट, तो वो कहीं ना कहीं डील जो थी बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन यूएस, दैट कॉर्पोरेशन वाज फाइनली सीन आफ्टर दिस, राइट. इंडिया जो था कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्टनर बना फॉर यूएस इन एशिया, राइट. तो अगर आज के बारे में बात करें तो बेसिकली इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप आर कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप. क्यों बोला जाता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. इस न्यूज में क्या लिखा गया है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अब पहले हम लोग समझेंगे कि किसकी मुलाकात किससे हुई थी, दैट विल अंडरस्टैंड, ठीक है. जैसे कि हमने समझा कि जो हमारे जयशंकर जी हैं, बेसिकली ही मेट द लीडर्स ऑफ यूएस एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉक बेसिकली हैपेंड एंड व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज ऑफ एक्सचेंज हैपेंड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर है, ठीक है. अब जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनसे मिले, राइट, और बेसिकली दे डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. हमारा इंडिया और यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में समझा गया, ठीक है. इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में समझा गया, जहां पे उन्होंने बेसिकली बात करी ट्रेड की, डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की और एनर्जी की, ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि कैसे इंडिया और यूएस साथ में काम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है, राइट. कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं हम लोग अपना ट्रस्ट और कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ में, दोनों कंट्रीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये चीज साथ में. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज डिस्कस्ड, ठीक है. उसके बाद में जो डिस्कशन हुआ था हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बात की गई थी, हमारी बात की गई थी कि कैसे जो है दोनों की दोनों साइड जो है टेरिफ्स रिड्यूस कर सकते हैं, मार्केट एक्सेस को कैसे बेसिकली हेल्पफुल बना सकते हैं. तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें हेल्प करेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, जॉब में हेल्प करेगा, और इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन इन्वेस्टमेंट आल्सो, राइट. सो दिस वाज द सेकंड थिंग दैट वाज डिस्कस्ड. इसके साथ साथ में जो हमारी तीसरी चीज थी, दैट वाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. मतलब कैसे कोऑपरेट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कैसी हो सकती है, हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट, और डिफेंस टेक्नोलॉजी और जितने भी हमारे आर्म्स और इक्विपमेंट है, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये जो मीटिंग है कहीं ना कहीं हमारी बात कर रही है डिफेंस पार्टनरशिप की, अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, कि कैसे दोनों कंट्रीज में बिल्ड हो सकती हैं ये चीजें, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म बट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल, राइट. उसको मेंटेन, और जो हमारे बीच में जो ट्रस्ट है, ये कॉपरेशन है, वो और मेंटेन कैसे हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो, स्पेशली आफ्टर द conflicts that we are going through because of the tariffs, right. उसके बाद में ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं it explains that what US is thinking, right. So these kinds of basically future goals क्या हो सकते हैं US के, that are basically explained in here, so we can have an idea कि अभी US हमें कैसे लेकर चल रहा है, right. After this is telling one more thing to us, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है. तो मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग विद पेन एंड पेपर. अब देखो, इंडो पैसिफिक रीजन हमारे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पे टेंशन हमेशा ही रहती है इस प्लेस को लेके,
राइट, जो हमारा इंडो पैसिफिक है, राइट, इट इज लाइक अ लार्ज सी, ठीक है, और जो कि हमारा कनेक्ट करता है इंडो एशिया को और पैसिफिक ओशन को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लाइक इंडिया इज देयर, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जो है हमारे पास में, ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, राइट। तो हर किसी का यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहता है और ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो ट्रेड होता है वो यहीं से मूव करता है थ्रू सीज, राइट। और जहां पर भी हमारे पास ट्रेड रहेगा, कंट्रीज आर गोइंग टू बी सीन देयर, वो जो जगह जो है हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रीज जो है उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है, राइट। अब नाउ व्हाई डू इंडिया एंड द यूएस टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक? उन्होंने इस बारे में क्यों बात करी? पहले तो ग्रोइंग इंडिया टेंशन इन यूएस, तो हमारी कुछ कंट्रीज दे बिकेम पावरफुल एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल सी रूट्स, राइट। इन्फ्लुएंस करेगा स्मॉल कंट्रीज को, राइट। तो स्मॉल कंट्रीज आर बिकमिंग वेरी पावरफुल और वो हमारा जो कंट्रोल करना चाहती है सी रूट को और इन्फ्लुएंस करेगी स्मॉलर रूट को, तो ये कहीं ना कहीं फियर और टेंशन क्रिएट कर रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाई दिस इज इन द डिस्कशन, ठीक है। तो ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि सारी कंट्रीज जो हैं दे शुड हैव फ्रीडम। ये नहीं है कि एक पावरफुल कंट्री और वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है उस कंट्री को, नहीं। तो यहाँ पर इसलिए डिस्कशन हुआ कि बेसिकली दोनों ही कंट्रीज का गोल ये है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शुड बी देयर, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद में जो तीसरी चीज यहाँ पर डिस्कशन में आई थी वो इसीलिए है क्योंकि पेस और स्टेबिलिटी की बात की गई थी, राइट। एज इट वाज सीन कि कोई थ्रेट और कोई वॉर नहीं होगा। अब कोई पावरफुल कंट्री ये नहीं बोले कि आई हैव रिसोर्सेज, आई हैव न्यूक्लियर पावर, तो तुम्हें बेसिकली सप्रेस होना पड़ेगा। अब देखो, इंडिया और यूएस के बीच में ये बात हो रही है और यूएस जो कि स्ट्रेटेजी ही यही यूज करता है वॉर और थ्रेट की, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। बट ओके, कमिंग ऑन, उसके बाद में सबसे चौथा डिस्कशन क्यों हुआ था? बिकॉज इट बैलेंसेस राइजिंग पावर्स आल्सो, कि कोई सिंगल नेशन डोमिनेट नहीं करेगा, कि सिर्फ यूएस डोमिनेट नहीं करेगा, सिर्फ बेसिकली चाइना डोमिनेट नहीं करेगा या फिर कोई और कंट्री डोमिनेट नहीं करेगी, बिकॉज दे हैव पावर, बिकॉज दे आर पावर और बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस बेसिस पे हुआ कि बैलेंस करके चलेंगे हम लोग यहाँ पर, right? So this is why this discussion was seen for this. I hope it is understood. अब समझते हैं कि इंडिया और बेसिकली यूएस को चाहिए क्या। पहले तो फ्री इंडो पैसिफिक चाहिए, एज वी हैव डिस्कस द पॉइंटर्स आल्सो, ठीक है, कि कोई फोर्स और कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम जो है पावरफुल कंट्रीज है तो हम डोमिनेट करने वाले हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक और का बेसिकली फ्री सीज और फ्री ट्रेड होना चाहिए, हर कंट्री के लिए एक्सेस होना चाहिए उस जगह का, राइट। फिर उसके बाद में इंडो पैसिफिक का रिलेशंस और बेसिकली जो नेशंस है, राइट, तो दे आर बेसिकली मेंशनिंग कि कैसे इट शुड बी लाइक गिवन टू ईच एंड एवरी कंट्री। कोई डोमिनेशन, कोई बड़ी कंट्री है कोई छोटी कंट्री का सवाल नहीं उठना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद में वापस से आते हैं कि और क्यों डिस्कस हुआ था। नाउ ग्लोबल इश्यूज, फिफ्थ है हमारा ग्लोबल इश्यूज। पहला क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और उसके बाद ये स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। तो दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये चीजें हैं, टेररिज्म वगैरह है, राइट। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारे पास है, जो हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो भी हमारे पास हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडिया और यूएस जो है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, राइट। सो दिस वाज द फिफ्थ थिंग दैट वाज डिस्कस्ड। छठी चीज क्या हुई थी? टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हुई थी। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई लीडर मिलेंगे मिनरल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि मिनरल्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट, उनको क्या जरूरत है? मटेरियल की जरूरत है, जैसे कि लिथियम की जरूरत है, रेयर की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, कोबाल्ट की जरूरत है, राइट। सो उनकी जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रिक वेसल्स है, राइट, बैटरीज की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से उनकी जरूरत है, डिफेंस और टेक की वजह से मिनरल्स की जरूरत है, राइट। तो इंडिया और यूएस को चाहिए कि सिक्योर सप्लाई चेन होना चाहिए, कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए एक भी कंट्री पे कि एक ही कंट्री पे हम लोग डिपेंडेंट है, राइट। अब अगर एक कंट्री का सवाल उठ रहा है तो चलो हम लोग पैक्स सिलिका के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और ये मिनरल्स की और इन सब चीजों की बात हो रही है तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो देखो पैक्स सिलिका का मतलब क्या होता है? तो पैक्स का मतलब होता है पीस और ऑर्डर। सिलिका का मतलब कहाँ है? सिलिका का मतलब है इट मीन सिलिकॉन, राइट। और ये मेन मटेरियल है जो बेसिकली यूज होता है किस लिए? कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, हेयर हार्डवेयर बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पैक्स सिलिका का मतलब है अ न्यू ग्लोबल सिस्टम जहां पे टेक्नोलॉजी पावर जो है हमारे पास चिप्स है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स है और जो हमारे एआई हार्डवेयर है, राइट,
दे बेसिकली आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है इट शुड बी लाइक केप्ट स्टेबल, सिक्योर होनी चाहिए, और बेसिकली सिर्फ सिक्योर नहीं, इट शुड बी लाइक शेयर्ड अमंग अदर पीपल्स। ये नहीं है कि एक हमारे पास कंट्री है, उसके पास में ये है रिसोर्स एंड ही इज नॉट शेयरिंग विद अदर कंट्री, और अगर शेयर कर रहा है तो बेसिकली वो और ज्यादा टैरिफ लगाकर या फिर उसको और ज्यादा महंगा शेयर कर रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाई दिस वाज आल्सो टॉक्ड। अब इसमें यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझेंगे चाइना का। तो अब देखो चाइना का रोल अगर हम समझते हैं तो अभी जो चाइना के पास में है इट लाइक कंट्रोल्स मोर देन 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिफाइनिंग, ठीक है। तो डोमिनेंस आर लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। तो उनका जो कंट्रोल है चिप्स पर है, राइट। उनका जो कंट्रोल है जितने भी चिप्स रिलेटेड सप्लाईज है उन सभी चीजों पर है, राइट। तो दीज मिनरल्स एंड चिप्स आर लाइक नीडेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि मैंने बताया मोबाइल्स में जरूरत है, डिफेंस में जरूरत है, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जरूरत है। और अब सोचो अगर हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर इस चीज की इन मिनरल्स की इतनी ज्यादा जरूरत है तो मतलब सप्लाई तो इवनली होना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं हो रहा था, राइट। क्या हो रहा था कि चाइना ने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स थे, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, उनको रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ चिप्स हैपेंड, हमारा जो प्राइसेस था वो बढ़ गया, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या हुई, डिले हुई, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं हुई, कि डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए इन्हीं की तो जरूरत है, राइट। और अगर डिले होगा, रिस्ट्रिक्ट होगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगी ना। तो इसीलिए व्हाइल अमंग द अदर कंट्रीज दीज कंट्रीज रियलाइज कि नहीं, हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं जब कोई बेसिकली कंट्री इट इज यूजिंग लाइक अ पावर, कि मेरे पास में है और मैं सप्लाई मेरा जब मन करेगा जितनी देर में करेगा और मेरा रेस्ट्रिक्ट करने का मन करेगा तो मैं करूंगा, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे हैव लाइक डिसाइडेड। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या है पैक्स सिलिका का, तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझना होगा कि इट इज लाइक अ ओके। तो ऑब्जेक्टिव समझे तो यहाँ पे सिक्योर करेंगे सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन्स को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बात करी कि जो हमारा चिप्स है, राइट, दे शुड बी लाइक एआई चिप्स, दे शुड बी लाइक अवेलेबल टू एवरीवन, सबके पास में एक्सेस होना चाहिए। डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हर किसी का हक है, राइट, टू हैव दिस, राइट। उसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स को, प्रमोट करेंगे हम और ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनरशिप को, राइट। इंश्योर करेंगे दिस लाइक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑल्सो, राइट। टेक्नोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए कि इट शुड बी लाइक यूज्ड एज अ वेपन, है ना, कंट्रोल बाय सम अथॉरिटेरियन प्रेशर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स सोवरेनिटी, हर किसी का हक है इस पर। Then again, the question arises why US is discussing about it, क्योंकि looking at the scenarios, looking at the Russian oil that we were taking from them, और फिर उसके बाद उस चीज पर जो conflict चला था, तो somewhere it raises questions also कि तुम अपनी ideology पे इकट्ठा खड़े नहीं हो पा रहे हो। But then again, so these are the basically things that comes in our mind. I hope it is clear. This is it for today. This is the question that you have. Please see the question and write the answers in the comment section. The PDF will be uploaded in the comment section in few hours. And this is it for today. I'll see you on Monday at 8:10. Thank you.